Hello children, DAV class 4 SST chapter number 12. Let us communicate. We read this chapter and try to understand what is in this chapter. So let's start reading. A dancer communicates his feeling through mudras. एक डांसर अपनी फीलिंग को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है? मुद्रास के थ्रू. What is mudra? क्यों mudra is a use of hand gesture, right? In Indian classical dances used to communicate an action or a meaning through mudras. A meme artist through facial expression और बॉडी लैंग्वेज. और मीम आर्टिस्ट कैसे करते हैं? मीम आर्टिस्ट फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से करते हैं. आजकल बहुत सारे मीम्स नहीं बोलते हैं, जो इमोजीज हैं वो समहाउ मीम से बने हुए हैं. A child convey its happiness through smile and anger through cries. एक जो चाइल्ड होता है वो अपनी हैप्पीनेस कैसे शो करता है? स्माइल के थ्रू. और अपने एंगर को कैसे शो करता है? क्राइज के थ्रू, क्राई करके. We all have a different way of communicating or feeling of joy and sorrow. हम सब की अपनी अपनी जो फीलिंग होती है, या सॉरो होता है, या जॉय होता है, या एंगर, सेटिस्फेक्शन, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारा कम्युनिकेट करने का अलग अलग तरीका होता है. इन अर्लियर टाइम मैन डिड नॉट नो एनी लैंग्वेज. अर्लियर टाइम में मैंस को कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, इंसानों को कोई लैंग्वेज नहीं आती थी. He communicate his feeling through sign language to people who were close by. तो वो लोग जो उनके पास में रहते थे उनको तो वो साइन लैंग्वेज से बात कर लेते थे. किसी भी तरीके की साइन, पानी पीने हो तो पानी का साइन, समथिंग लाइक दैट. He sent messages through drums or smoke signal to people living far away. बट दूर वाले लोगों को वो कैसे बुलाएंगे? तो उसके लिए वो क्या करते थे? वो ड्रम बजाते थे. तो दूर के लोग जो होते थे उनको ड्रम की आवाज़ आती थी, वो समझ जाते थे कि इसका सिग्नल है कि वापस चलो. या फिर वो फायर बर्न करते थे, फायर से जो स्मोक निकलती थी वो स्मोक को देख के वो समझ जाते थे कि हाँ अब हमें घर जाना है, वापस जाना है. So communication means sending and receiving spoken, written or visual information from one person to another. So ये communication की definition दी हुई है कि what communication exactly is. It's sending and receiving spoken, written और visual information एक person से दूसरे person तक देने का. ये एक method है. राइट. यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन के आपको वो दिया हुआ है सिंबल्स दिया हुआ है. पहले कैसे लोग जाते थे? पहले हॉर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लेके जाते थे, देन टेलीफोन, देन इंटरनेट, देयर आर मेनी मोर थिंग्स. सो स्पीच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. स्पीच जो है, जो अब हम जैसे बात करते हैं, वो जो है मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का मेथड है, बहुत इम्पॉर्टेंट. द अदर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हैंड मूवमेंट, सिम्बल्स, letter, newspaper and book, etc. These are the important means of communication. Today we have many modern devices through which we can communicate more efficiently. अब हमारे पास बहुत सारे devices हैं जिससे कि हम बहुत आराम से communicate कर सकते हैं. The most important are telephone, mobile, radio, television and internet. These are the most important. These are the most important devices through which we can communicate more effectively, more efficiently. Now, the next page, means of communication. So, what are the different means of communication? So, means of communication is divided into two parts, the personal communication and the mass communication. How do we do a personal communication? Through postal system, telephone and mobile, right? For mass communication, we use print communication and electronic communication. Print communication include newspaper, books, journal and magazine, which we generally read in our library, okay, in our course books. Now, electronic communication, it's a radio, television, satellite, fax, computer, cinema and teleconferencing. These are the electronic communication method we use in today's scenario. Now, this do you know rectangular box, it's very important. At sea, sailors send messages to other ship by waving flag or firing cracker in the air if their radio communication breaks down.
इन ये मैक्सिमम पहले होता था कि जो सी सेलर होते थे वो क्या करते थे, वो रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। बट इन केस उनका रेडियो का कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, अनफॉर्चुनेटली उनको सिग्नल नहीं मिला, तो वो क्या करते थे, वो जो है वो फ्लैग को वेव करते थे, और या तो फ्लैग को वेव करते थे या फायर को क्रैक करते थे, वेयर इन द एयर। नाउ in class 3, you have read about verbal communication, speaking and signing, and non-verbal communication, facial expression, sign and body language. ठीक है, क्लास 3 में हमने वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम बोल के बात करते हैं, बोल के या फिर गा के, ठीक है, सिंगिंग फॉर्म में। नॉन वर्बल क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर कोई साइन देना या बॉडी लैंग्वेज से हम कोई सिग्नल दें, ये होता है। हमने वर्बल एंड नॉन वर्बल जो है क्लास 3 में पढ़ा है। अब हम यहाँ पे नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। So we shall start with personal communication. Communication only between the sender and the receiver is known as personal communication. This mean of communications are, देखो, जो कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में जो रहता है, किसी और को नहीं पता चलता है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। एंड पर्सनल कम्युनिकेशन में के क्या मीन्स हैं, सो फर्स्ट मीन है पोस्टल सिस्टम, right? Postal system. Postal services is the oldest and still a popular means of communication. Postal services जो है, लेटर लिखना मीन्स आप एक शहर में रहते हो या शहर के बाहर रहते हो तो लेटर लिख के कम्युनिकेट करते हो। The postal department carry our mail, मनी ऑर्डर एंड पार्सल टू ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया। पोस्टल के थ्रू हम सिर्फ लेटर ही नहीं लिख सकते, अपना मैसेज ही नहीं पहुंचा सकते। हमें अगर हमें कोई मेल करना हो, कोई सामान भेजना हो, ठीक है, या फिर मनी हमें भेजना हो या फिर पार्सल, वही सामान, तो हम क्या करते हैं, पोस्टल सर्विस के थ्रू भेजते हैं। नाउ द नेक्स्ट पेज ऑफ पोस्टल सिस्टम, दे आर डिलीवर to our friend, relative and business contact. The mail is sent by road, rail, air और ship. जो हमारा मैसेज होता है या पार्सल होता है, जो मनी ऑर्डर होता है, वो हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स में जहाँ भी हम भेज रहे होते हैं, वहाँ पे वो कैसे जाता है, या तो बाय रोड जाता है, बाय रेल जाता है, बाय एयर और बाय शिप। ठीक है। नाउ the first post office in India was opened at Calcutta in 1727. 1727 में फर्स्ट पोस्टल ऑफिस इंडिया में ओपन हुआ था, किस सिटी में, कोलकाता में। टुडे देयर आर ओवर दिस मच ऑफ 1,55,618 post offices are there in India, right? Nowadays, a special post service has been introduced by the post office. अब जो है स्पेशल पोस्टल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। इट इज़ कॉल्ड स्पीड पोस्ट फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ मेल। स्पीड पोस्ट, पहले जो हम पोस्ट करते थे लेटर, वो 1 वीक लग जाता था। अब स्पीड पोस्ट में क्या है, 1-2 दिन में पहुंच जाता है। देर आर मैनी प्राइवेट कुरियर सर्विसेज फॉर डिलीवरी लेटर एंड पार्सल्स। बहुत सारी प्राइवेट सर्विसेज भी हैं जो कुरियर और लेटर्स को डिलीवर करती हैं। जो ये स्पीड पोस्ट है, ये तो पोस्टल सर्विस ऑफ इंडिया के थ्रू है ना, तो ये गवर्नमेंट सर्विस है। नाउ डू यू नो बॉक्स, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो पोस्टल सर्विस नेटवर्क है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। द हाइएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट हिकिमी इन हिमाचल प्रदेश। तो जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, हाईएस्ट पीक पे है, वो कौन सा है, वो है हिकिमी, हिमाचल प्रदेश में, राइट। नाउ द नेक्स्ट डू यू नो बॉक्स, अ पोस्टल इंडेक्स नंबर, दिस इज कॉल्ड पिन इन शॉर्ट, अ 6-digit कोड ऑफ पोस्ट ऑफिस नंबरिंग। इट इंश्योर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ मेल। अगर आपको किसी को पोस्टल सर्विस के थ्रू लेटर भेजना होता है ना, तो उसमें पिन नंबर डालना होता है, तो उस एरिया का 6-digit का पिन नंबर आपको आना चाहिए, तभी आपका लेटर ईजिली पहुंच जाएगा।
सो यहाँ पे यू हैव टू राइट डाउन द पिन कोड ऑफ योर लोकेलिटी. आपकी लोकेलिटी का पिन कोड आप पता करोगे और यहाँ पे आपको उसको फिलअप करना है. नाउ द बी पार्ट. A part was postal services. Now the telephone. These are the means of personal communication. Telephone is the most common and instant means of two-way communication. टेलीफोन जो है बहुत ही कॉमन है और ये इंस्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है. मतलब आपको अभी किसी से बात करने का मन कर रहा है, अभी आप फ़ोन कर लो. पीपल लिविंग फार कैन टॉक टू ईच अदर एज इफ दे आर सिटिंग फेस टू फेस. जो दूर के लोग भी हैं ना, वो भी ऐसे बैठ के बात कर सकते हैं जैसे आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं. टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय एलेक्जेंडर ग्राहम बेल in 1876. It's allow people from all over the world to communicate instantly. ये जो टेलीफोन है वो उसका इन्वेंशन किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में किया था. इट अलाउ पीपल, ये दुनिया भर के लोगों को अलाउ करता है कि आप तुरंत एक दूसरे से बात कर लो. दुनिया में आप कोई कहीं भी हो, आप उस वहाँ का फ़ोन नंबर डायल करो और बात कर लो. You can connect directly to people living anywhere in India by dialing the code number STD. अगर आपको इंडिया के अंदर किसी शहर में बात करना है तो वो कॉल होती है STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायल. ठीक है, आपको उस शहर का कोड नंबर चाहिए होता है और आप कॉल कर सकते हो अगर आपको लैंडलाइन पे कॉल करना है. एंड अब्रॉड बाय ISD, अगर आपको अब्रॉड बात करना है तो आपको ISD चाहिए होता है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. राइट. Now, the third means of personal communication is mobile phone. The first one is postal services, second one is telephone, and the third is mobile phone. Mobile or cell phone have brought a revolution in instant communication. आप जानते हो मोबाइल फ़ोन जो है एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन है इंस्टेंट कम्युनिकेशन में. They can be carried and used anywhere in the world. They can be used for sending message, photograph, data, even email, electronic mail. आपको पता ही है, मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन होता है. So you must know about that. Now the do you know box, rectangular box. Till recently, telegraph service was popular method of sending urgent message through the post office. It was stopped in July 2014 as mobile phone gained popularity for instant communication. पहले क्या होता था कि पोस्टल सर्विसेज के थ्रू 1 वीक में मैसेजेस जाते थे. ठीक है, 1 वीक में 10 डेज में लेटर पहुंचते थे. फिर स्पीड पोस्ट से क्या हुआ, 2-3 दिन में मैसेजेस पहुंचने लगे. फिर एक टेलीग्राफ करके सर्विस आई थी पोस्टल सर्विस के थ्रू, अर्जेंट मैसेज होता था वो. टेलीग्राम आया है मीन्स तुरंत वेरी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैसेज पहुंच जाता था. तो वो एक्सपेंसिव भी होता था और उसमें टाइम कंज्यूमिंग सब कुछ था, पैसे भी लगते थे. बट इट वॉज स्टॉप्ड इन जुलाई 2014 जुलाई में इसको बंद किया गया. क्यों बंद किया गया? क्योंकि अब फ़ोन के थ्रू हम तुरंत मैसेज कर सकते हैं. आपको पता ही होगा, आप तो दिन भर मैसेज भेजते भी होंगे, राइट. नाउ वी विल रीड अबाउट मास कम्युनिकेशन. हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं. कम्युनिकेशन 2 टाइप के हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन में हमने पोस्टल सर्विस पढ़ा, देन हमने टेलीफोन पढ़ा, देन लास्ट मोबाइल फ़ोन. अब हम मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं. मास कम्युनिकेशन मतलब एक साथ बहुत लोग से बातें करना. सो मास कम्युनिकेशन में फर्स्ट क्या है, प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया इंक्लूड न्यूज़पेपर, बुक, मैगजीन, जर्नल्स एक्सेट्रा. प्रिंट मीडिया में ये सब चीज़ें आती हैं. प्रिंट मीडिया मतलब जो प्रिंट करके लोगों को मैसेज पहुंचाया जाता है. दे आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. ये मास कम्युनिकेशन का पॉपुलर, सबसे पॉपुलर मीन है. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग नॉलेज. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडिया, स्किल को बताने में थ्रू वर्ड्स में हम लिख के ये चीज़ें लोगों को स्प्रेड कर देते हैं, राइट. और लोगों को पता चल जाता है थ्रू वर्ड्स, फिगर, इलस्ट्रेशन एंड ग्राफ्स टू 1000 ऑफ पीपल. मतलब हमें हज़ारों लोग को भी कोई बात बतानी हो तो हम उसको न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दें, प्रिंट मीडिया के थ्रू सबको पता चल जाएगा. न्यूज़पेपर में डाल दें, मैगजीन में डाल दें, किसी बुक्स में डाल दें,
पता चल जाएगा। सो प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है? द फर्स्ट वन इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हैव अ वाइड रीच अमंग द लिटरेट। न्यूज़पेपर जो है लिटरेट लोग के, पढ़े लिखे लोग के बीच में बहुत आराम से फैला हुआ है, इसका वाइड रेंज है। दे ब्रिंग अस द लेटेस्ट न्यूज अबाउट इवेंट, एडवर्टीजमेंट, मैट्रिमोनियल स्टोरीज, कॉमिक, वेदर रिपोर्ट एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर से हमें क्या क्या पता चल जाता है? एडवर्टीजमेंट हो जाती है, किसी भी इवेंट के बारे में पता चल जाता है, मैट्रिमोनियल स्टोरीज भी होती है, कॉमिक्स भी होती है, वेदर रिपोर्ट भी होता है, हॉरोस्कोप भी होता है। न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन मेनी लैंग्वेज इन इंडिया। और इंडिया के हर पार्ट में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो न्यूज़पेपर अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं। द हाइएस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन हिंदी, बट द हाइएस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में होता है? हिंदी में होता है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज द बंगाल गज़ट। बंगाल गज़ट जो है वो फर्स्ट न्यूज़पेपर है इंडिया में जो पब्लिश्ड हुआ। Now, this do you know box. How do we get news or how collect the news? So, हमें न्यूज़ कैसे मिलती है, हम इसको कैसे कलेक्ट करते हैं? न्यूज़ करस्पॉन्डेंट सेंड स्टोरी ऑफ इवेंट, करंट अफेयर्स इन देयर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. द एडिटर ऑल्सो कलेक्ट न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़ एजेंसी. द मेजर न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया इज़ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. हम कैसे न्यूज़ को, हमें न्यूज़ कैसे मिलती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, हम कैसे कलेक्ट करते हैं? तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी और इवेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट करस्पॉन्डेंट के थ्रू, मीडिएटर कोई वहाँ बंदा होगा, उससे हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे किसी और कंट्री में किसी न्यूज़ चैनल का बंदा होगा, वो वहाँ से हमें न्यूज़ भेजेगा, उस चैनल को न्यूज़ भेजेगा और उनको वो न्यूज़ पता चल जाती है। या फिर जो एडिटर होते हैं वो न्यूज़ को अलग अलग जगह से कलेक्ट करते हैं, अलग अलग एजेंसी के पास। जैसे पॉपुलेशन के बारे में हमें न्यूज़ चाहिए या वेदर के बारे में हमें न्यूज़ चाहिए, तो वो वेदर डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। उनको पॉपुलेशन के बारे में न्यूज़ चाहिए होगी तो वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे पॉपुलेशन की न्यूज़ मिलती है, वहाँ से सब कलेक्ट करके और न्यूज़पेपर हमें देते हैं। तो द मेजर न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया, इंडिया की मेजर सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी कौन है? द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट बुक्स। सो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, उसमें पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन में हमने पोस्टल सर्विसेज पढ़ा और टेलीफोन पढ़ा, मोबाइल फ़ोन का पढ़ा। मास कम्युनिकेशन में हमने न्यूज़पेपर पढ़ा और हम बुक्स पे हैं। So, thousands of books are published in different language in India. They are written on a variety of subjects like social issue, story, novel, poems, biographies, religion, public health, travel, wildlife, etc. So, इंडिया में 1000 of books पब्लिश होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में होती हैं और वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लिखी रहती है। कौन कौन से सब्जेक्ट पे लिखी है? दो सब्जेक्ट्स आर गिवन देयर, यू नो, बायोग्राफी, पॉलिटिक्स, रिलीजन। आई ऑलरेडी रीड इट। अ मैन इज अ बेस्ट फ्रेंड एज इट कैन बी, सॉरी, अ बुक इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। जो बुक होती है वो मैन्स की बेस्ट फ्रेंड होती है, एज इट कैन बी रीड एनी वेयर एनी नंबर ऑफ टाइम। आप उस बुक को कहीं भी पढ़ सकते हो, कितनी बार भी पढ़ सकते हो। तो बुक इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन, मीन्स हमारी भी होती है, चिल्ड्रंस की भी होती है। नाउ जनरल एंड मैगजीन्स, they are printed in different language and on different topics on social information, women issues, children health, etc. They are different, they are also, journals are also, means if you see newspaper, book, journals and magazine, they all can be written in a different language. So journal is also written in a different language and different topic on special information. स्पेशल, वो किसी स्पेशल टॉपिक को पकड़ते हैं, जैसे वुमेन इशू, चिल्ड्रन हेल्थ एक्सेट्रा। नाउ सो मास कम्युनिकेशन में हमने पहले प्रिंट मीडिया पढ़ा। प्रिंट मीडिया में 3 चीज़ें आती थी, कौन सी? न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल। अब हम मास कम्युनिकेशन के दूसरे पार्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ेंगे, के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज रेडियो। Radio is the most popular method of mass communication and was invented by Guglielmo
लेमॉन मार्कोनी। आपको पता है ये इन्वेंटर का नाम है गुगली लेमॉन, ठीक है। सॉरी, द प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट रॉन्ग, इट कुड बी गुगली एल्मो मार्कोनी। इन्होंने रेडियो का इन्वेंशन किया और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है मास कम्युनिकेशन का। रेडियो ब्रॉडकास्ट म्यूज़िक, न्यूज़, प्ले, स्टोरीज, स्पीचेस, एडवर्टीजमेंट, ये सब चीज़ें रेडियो के थ्रू ब्रॉडकास्ट होती है, मतलब लोगों तक पहुंचाई जाती है। थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन लिसन टू एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एवरी डे। हजारों बच्चे जो है एजुकेशनल प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इसके थ्रू सुनते हैं डेली। पीपल फॉलो स्पोर्ट्स इवेंट डिस्कशन ऑन रेडियो एंड ट्रांजिस्टर एवरीवेयर। लोग जो है स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी सुनते हैं। हाँ, जब मैच वगैरह आता है तो क्या हम सारा सुनते हैं, उस पर कितने छक्के लगे, कितने चौके लगे, या फिर फुटबॉल आ रहा है तो कितने गोल लगे। तो दिस इज द रियली important source of electronic media. So this do you know box, aeroplane and ships use radio wireless transmission to send message in an emergency. ये जो एरोप्लेन और शिप होती हैं, ये जब फ्लाई करती हैं या शिप जो है सेल होती है, तो फिर वो लोग वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। इन इमरजेंसी वो लोग रेडियो ट्रांसमिशन के वायरलेस सिस्टम के थ्रू बात करते हैं। नाउ इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द नेक्स्ट पॉइंट इज टेलीविज़न। So television, it was invented by John Logie Baird in 1926, ठीक है, इनके थ्रू ये इन्वेंट हुआ। Television has a more impact than a radio as it has a audio as well as a video facility. टेलीविज़न जो था उसका मोर इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे, क्यों? क्योंकि इसमें ऑडियो भी था, विजुअल भी था, इसको सुन भी सकते थे, देख भी सकते थे। रेडियो को सिर्फ सुन सकते थे। यू कैन वॉच एनी थिंग हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा है आप उसको देख सकते हैं वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट ऑफ योर होम, अपने घर में आराम से बैठ के। इट टेलीकास्ट, ये क्या क्या टेलीकास्ट करता है? फिल्म, प्ले, म्यूजिक प्रोग्राम, स्पोर्ट्स इवेंट, कार्टून फिल्म्स, क्विज प्रोग्राम, वेदर रिपोर्ट, डिस्कशन, many more. There are hundred of channels showing a variety of programs in different language. hundred से भी ज़्यादा channels हैं different languages में, आपको different programs दिखा सकते हैं। So आपको यहाँ name your favorite channel and your favorite program लिखना है। Now the number comes of satellite. An artificial satellite is a man-made object which revolves around the earth. India has launched a number of satellites into space for transmitting news, international calls, transmitting sound and pictures. आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो मैन मेड होती है। नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं बट वो नेचर ने मेड किया होता है, मीन्स यूनिवर्स ने मेड किया होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन ने मेड किया होता है। द अर्थ, ये जो सैटेलाइट होती है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होती है, और इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट्स जो है लॉन्च की है स्पेस में। किस लिए? फॉर ट्रांसमिटिंग न्यूज़, इंटरनेशनल कॉल्स। ये जो हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, सुनते हैं, या फिर मोबाइल पे फ़ोन पे बात करते हैं, ये कैसे हो पाता है पॉसिबल? ये हो पाता है सैटेलाइट के थ्रू, हमें सिग्नल मिलता है तभी। यू कैन watch badminton match played in Beijing or watch Olympic games while sitting in the comfort of your home in channel through a satellite. आप बैडमिंटन का मैच जो कि बीजिंग में हो रहा है या ओलंपिक गेम हो रहा है, ये सब आप अपने घर में आराम से बैठ के सैटेलाइट के थ्रू किसी भी चैनल पे देख सकते हो। नाउ डू यू नो बॉक्स, इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू द स्पेस इन 1975। इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट जो है 1975 में भेजा था। इट वॉज नेम्ड द आर्यभट्ट। हमारी पहली सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने क्या पढ़ा? हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो पढ़ा, टेलीविज़न पढ़ा, फिर हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल नो अबाउट फैक्ट्स। फैक्ट्स और फेस स्माइल इज ऑल्सो नोन एज टेलीकॉपिंग।
ठीक है, फैक्स को या फैसिस्माइल इज को क्या कहते हैं, टेलीकॉपिंग भी कहते हैं. इट सेंड प्रिंटेड मैसेज और पिक्चर टू अनदर मशीन लोकेटेड एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट मेक यूज़ ऑफ द टेलीफोन लाइन्स. देखो, जो फैक्स मशीन होती है वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होती है. आप यहाँ अपने फैक्स मशीन में कोई भी पिक्चर या मैसेज रिटर्न डालोगे लिखा हुआ पेपर पे, वो वही सेम पिक्चर और जो मैसेज होता है वो वहाँ पे उनके पेपर में प्रिंट होके उनको मिल जाएगा. ये कैसे पॉसिबल होता है? एक तो इसमें टेलीफोन कनेक्शन चाहिए होता है, ठीक है, लैंडलाइन का कनेक्शन चाहिए होता है. उसके बाद आपको जिसको आप भेज रहे उसका फैक्स नंबर चाहिए होता है. उसी फैक्स नंबर पे वो मैसेज आप भेजोगे तो सामने वाले को मिल जाएगा. So our next topic is computer. We all know about the computer. A computer is an electronic device, right? It is a program to carry any type of operation, mathematics, logic, storing information, etc. It is used for sending email. कंप्यूटर इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है. एंड ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग इंस्टेंट डिजिटल मैसेज फ्रॉम द पर्सन टू वन और मोर पर्सन. It operates through the internet. I think you people must know about the computer, how email is sent. email पता है ना, email address पे mail कर दो, internet आपके पास हो. So I'm not going to describe computer more because you know about this. Now the next topic is cinema. So cinema is a popular means of mass communication in India. Cinema जो है popular mean है mass communication. आपको बहुत सारे actor actress के name, hero heroine के name पता ही होंगे. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन देता है, एंटरटेनमेंट करता है, नॉलेज भी देता है. ओके. फिल्म ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस. बहुत सारी फिल्में होती हैं जो हमें अवेयरनेस की क्रिएट करती है. जैसे जो हमारे इंडिपेंडेंस पे बनी हुई पिक्चरें होती हैं वो हमें बताती हैं कि कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला, राइट. 100 ऑफ फिल्म्स आर मेड एवरी ईयर इन डिफरेंट लैंग्वेज. 100 से भी ज़्यादा फिल्में बनती हैं अलग अलग लैंग्वेज में इंडिया में. चिल्ड्रन इंजॉय कार्टून फिल्म्स. आप लोग कार्टून फिल्म्स एंजॉय करते हो तो आपको नेम योर फेवरेट फिल्म, नेम योर फेवरेट एक्टर. आपको अपनी फेवरेट फिल्म और एक्टर के नाम लिखने हैं. नाउ द डू यू नो बॉक्स. एडवर्टीजमेंट हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, राइट. आप तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एज वेल एज एडल्ट. हम भी हो जाते हैं, हम एडल्ट भी हो जाते हैं. दे कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, फिल्म, ड्रामा और इवेंट टू पब्लिक. Advertisements use poster, hoarding, billboard, street, walls, newspaper, magazine, radio, television. Means advertisement तो हर जगह होता है ना, रेडियो पे भी होता है, मैगजीन्स में खोलोगे कितने सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं. तो इट्स अबाउट एडवर्टीजमेंट. नाउ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. It is a flexible as you do not need any video equipment like webcam. ठीक है, इसमें आपको webcam की ज़रूरत नहीं होती है. ये फ्लैक्सीबल काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग होती है. इट रिफर्स टू होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर जनरली नॉट एट द सेम लोकेशन बट आर कनेक्ट थ्रू टेलीफोन्स. इसमें क्या होता है, लोग जो है स्क्रीन पे दिखते हैं. इसमें वीडियो इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है. स्क्रीन पे आप इन देख के लोगों से बात कर सकते हो, और एक ही लोग से नहीं, कई लोग से टेली कॉन्फ्रेंसिंग आप एक संग कर सकते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो. सॉरी, इसमें देख के नहीं, इसमें आप फ़ोन के थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग हम फ़ोन के थ्रू करते हैं ना. जैसे आपने कभी देखा होगा मम्मा कई फ्रेंड्स से एक संग बात कर, कई फ्रेंड्स के ग्रुप एक संग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो होती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग. नाउ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इट रिफर्स टू कॉन्फ्रेंसिंग वेर यू कैन बोथ हियर एंड सी दोज पीपल हु विद whom you are talking. अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हम देख नहीं सकते थे, सिर्फ बात कर सकते थे. बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम देख भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं. ठीक है, इसमें वेबकैम चाहिए होता है. टेली कॉन्फ्रेंसिंग में यू कैन जस्ट लिसन, कांट सी. नाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अस अ वेराइटी ऑफ ऑप्शन. मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं. द चॉइस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन आर रिक्वायरमेंट. अब हमारे कम्युनिकेशन जो है, अगर हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें देख के बात करनी है, हमें पढ़ के बात करनी है, या हमें सुन के बात करनी है. पढ़ के बात करनी है तो आप चैट करो, देख के बात करनी है तो आप वीडियो कॉल करो,
और आपको सिर्फ बात करनी है, सुन के बात करनी है, तो आप टेली कॉलिंग करो. इफ़ वी हैड टू सेंड एन अर्जेंट मैसेज और इमेज, वी यूज़ एन ईमेल. जब हमें कोई अर्जेंट मैसेज भेजना होता है हम क्या यूज़ करते हैं? ईमेल. बट इफ़ वी नीड टू डिस्कस सम मैटर, वी इमीडिएटली यूज़ अ टेलीफोन. बट हमें कोई मैटर तुरंत डिस्कस करना हो तो हम क्या करते हैं? हम इमीडिएटली कॉल करते हैं. ठीक है. सो चिल्ड्रेन, ये चैप्टर यहीं पे वाइंड अप होता है, ख़त्म होता है. ये बहुत ही लेंदी चैप्टर था. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय.